ठीक है, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर वाज इंक्रीज फ्रॉम 60 टू 145. आउट ऑफ दिस 145, 40 सीट्स वर रिजर्व फॉर ऑफिशियल मेंबर्स. मैंने ऑफिशियल मेंबर्स का मतलब होता है कि दे वर टू बी नॉमिनेटेड और दे विल टू बी इलेक्टेड और दे वर टू बी अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और द ब्रिटिश पार्लियामेंट. तो नेचुरली की 105 सीट्स वाज ओपन फॉर ऑल. इट वाज गिवन टू द इंडियन पीपल. कम इन. ठीक है, तो आउट ऑफ 145 सीट्स, just to make the government at the center, you required the support of 73 parliamentarians. Okay, and 105 seats was given to the general candidates. Mane, if all Indian people, if they would have fought the election, so there was all possibility that out of 105 seats, 73 seats would have been won by the Indian people, and they could have collectively formed the government at the center. Got the point? But वो लोगों ने क्या किया, आउट ऑफ बट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज इट वाज स्टिल इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और यू कैन से दैट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैज गिवन नो कॉन्क्रीट कंक्लूजन, and therefore the Indian National Congress under the leadership of Mahatma Gandhi was still of the opinion that they are going to continue their non-cooperation movement until the British are going to concede complete independence to them. And therefore the Indian National Congress avoided the election. Election को avoid कर दिया, बोला कि हम लोग we are not going to fight the election. अब सवाल उठता है कि there was another group of parliamentarians, the Congressive people, who were in jail during the whole course of the non-cooperation movement, and just at the end of the non-cooperation movement they were released. And one of the most important leader of the Congress was C.R. Das and Motilal Nehru. So they were having a typically different political idea कि non-cooperation movement करके हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला. And therefore we are going to bring a fundamental alteration in the style of fighting the British. अंग्रेजों से लड़ने के तरीके में ही आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, फंडामेंटल चेंज करेंगे. While you are trying to seek independence on behalf of India by non-cooperating with the British, we are going to bring fundamental alteration in our style of fighting, and we are going to cooperate with the British. We are going to fight the election, and out of 105 seats, we are going to win more than 73 seats, and we are going to form the government. In spite, if we failed to form the government, so then we are definitely going to behave as a strong opposition. We are not going to let the British government make a single law that is anti-India or anti-Indian. कोई भी ऐसा अंग्रेजों को कानून नहीं बनाने देंगे जो एंटी इंडिया या एंटी इंडियन हो. तो नेचुरली कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे विल डेफिनेटली बी फ्रस्ट्रेटेड एंड दे मे स्टार्ट थिंकिंग ऑफ लिविंग द कंट्री. अगर कोई भी एंटी इंडिया, जैसे एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम लोग कर रहे हैं कि जस्ट टू एनहांस देयर इनकम, द ब्रिटिश गवर्नमेंट परपेचुअली एवरी ईयर दे सिंपली ब्रिंग अ formal enhancement in the land revenue. If they are going to increase the land revenue, naturally their income is going to increase करेगा, but it is going to adversely affect the Indian people. So therefore we are going to play the role of a strong opposition, and we are never going to let the British government make a single anti-India or anti-Indian law. So naturally their net income is going to remain constant, and through creating nuisance for the British government, we are going to try to increase their expenditure, and as soon as their expenditure is going to exceed their income from India, so they are going to lose their heart or lose their interest in India, and they are going to think of living in the country. So their idea was, as far as theoretical idea of the C.R. Das and Motilal Nehru was concerned, it was definitely it was thought to be workable. काम करने लायक था, ऐसा इस पे काम किया जा सकता था. और हुआ क्या कि अब भाई, because the Congress which was now being headed by Mahatma Gandhi, Congress was Mahatma Gandhi and Mahatma Gandhi was Congress. And because Mahatma Gandhi has already made up his mental makeup that they are never going to cooperate with any of the system that has been declared by the British government, and therefore we are not going to fight the election. अब इलेक्शन नहीं लड़ने का प्लान बना लिया. They were also the people who were from the Congress. तो अगर if they are going to fight the election on the name of Congress, तो naturally कि the political height of Mahatma Gandhi would have been undermined.
नहीं कि आपका बात कांग्रेस से नहीं सुन रहा है, आपके घर का बात ही, आपका बात घर के ही लोग सुन रहे हैं। तो नेचुरली उसका पॉलिटिकल स्टेचर और पॉलिटिकल हाइट ऑफ महात्मा गांधी वुड हैव बीन लेसन ना। अगर कांग्रेस महात्मा गांधी कह रहा है, the Congress of Mahatma Gandhi faction was saying that they are not going to fight the election, and if C.R. Das and Motilal Nehru, if this faction of the Congress, if they are going to fight the election on the name of Congress, तो नेशनल की कांग्रेस में ये क्लियर हो गया होता कि कांग्रेस में सब चीज ठीक ठाक नहीं है, माने टूट है कांग्रेस में, ये होता ना बात। और दूसरा बात होता है कि महात्मा गांधी का बात सारे लोग नहीं मान रहे हैं, तो महात्मा गांधी का पॉलिटिकल स्टैंडर्ड और पॉलिटिकल हाइट ऑफ महात्मा गांधी वुड हैव बीन लेसन्ड और इट वुड हैव बीन chiseled or it would have been undermined, and therefore yes ये हुआ because both the faction or the politicians from of both the faction they were mentally matured enough to understand that they don't have to expose their hidden or expose any of the schism that exists within the Congress, any of the मनमुटाव जो ये ओपिनियन, ये डाइवर्स ओपिनियन है कांग्रेस का, उसको दुनिया के सामने लाना नहीं चाहिए। इसलिए वो लोगों ने क्या प्लान बनाया कि that faction or the faction of the Congress which was being headed by C.R. Das and Motilal Nehru, they were given suggestion by the Congress to form another political party. माने if they want to fight the election, so they can fight the election, but not on the banner of the Indian National Congress. Rather than they should make their own special banner. और जो बैनर बना वो था, उसका नाम था स्वराजिस पार्टी। तो स्वराजिस पार्टी fought 105 seats. And out of 105 seats, 45 seats were won by the Swaraj Party alone. But Swaraj Party was definitely having the covert support of the Congress. कांग्रेस का covert support था, under the cover जो है वो support था स्वराज पार्टी को। पर out of 105 seats, Swaraj Party won 45 seats in the central legislature. तो naturally कि just to form the government at the center, they required the support of 73 seats. They have won only 45 seats. तो naturally कि they were not in a position to form the गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में नहीं थे, बट बिकॉज दे वर डेफिनेटली हैविंग द स्ट्रेंथ टू प्रूव दैट दे हैव बिकम अ स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन के रूप में तो काम करेंगे हम लोग। उन लोगों ने किया भी कि 1923 से लेकर नेक्स्ट इलेक्शन 1926 में हुआ, ये 3 साल के अंदर में 3 कानून बनाया पार्लियामेंट ने इंडिया में। स्टेट स्टील प्रोटेक्शन एक्ट का फायदा क्या हुआ, देखो यहाँ पे कि 1900 ये कहा जाता है कि द टेस्को और द टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन वे बैक इन 1912। द टेस्को जो है टाटा आयरन स्टील कंपनी वाज रेडी फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन इन 1912, बट इन बिटवीन 1912 एंड 1923 नॉट इवन अ सिंगल छटाक ऑफ steel manufactured by the Tesco was sold in the market of India because they were not in a position to compete with their British counterparts. अंग्रेज जो है वो इंग्लैंड के भी लोग स्टील बना रहे हैं और आप भी बना रहे हैं स्टील, तो नेचुरली बिकॉज दे वर हैविंग बेटर टेक्नोलॉजी, बिकॉज दे हैव बीन डूइंग द सेम बिजनेस सिंस मोर देन 100 years, नेचुरली दे वर हैविंग बेटर बिजनेस स्किल्स। तो ठीक है, तो आयरन स्टील बना रहा वो लोग, इंडिया टिस्को बना रहा है ₹1.30 पर केजी, ठीक है। एंड आयरन स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, इट वाज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड फॉर ₹1 पर केजी। तो naturally कि whenever the British government in India used to give any auction that they have to purchase 10,000 or 10 tons of iron steel, 10 टन आयरन स्टील खरीदना है, तो naturally कि they are going to give the auction to the highest bidder, to the lowest bidder in fact. तो naturally कि the British industrialist iron steel manufacturer they are going to supply or they are going to agree to supply iron steel at a cost of ₹1 per kg, while the Tatas they are ready to supply iron steel to the government of Britain in India at a rate of ₹1.30 per kg। नहीं, ₹1.30 में तो कौन खरीदेगा? ₹1.30 कौन खरीदेगा? कौन नहीं खरीदेगा। तो नेचुरली कि टाटा आयरन स्टील वाज नॉट इन अ पोजीशन टू compete with their ब्रिटिश काउंटरपार्ट्स, तो नहीं बेच पा रहे थे। पर जैसे स्टील प्रोटेक्शन एक्ट आया, स्टील प्रोटेक्शन एक्ट में था कि 89% ऑफ द टोटल टैक्सेस, डोंट डू क्रिएट न्यूसेंस, समझे? नहीं आना था हमको, कहा हम तुमसे कब कहे हैं कि तुम जज बनो, कलेक्टर बनो या कुछ और करो, तुम वही करो जो तुमको मन करता है करो। पर यहाँ पे इट्स माय क्लासरूम, समझा? ये मेरा क्लासरूम है, घर से नहीं बुलाते कभी भी तुमको, पर आए हो तो यू विल हैव टू बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। गधा।
ठीक, स्टील प्रोटेक्शन एक्ट में 89% टैक्स ये कानून बनाया कि एनी कॉमोडिटी कमिंग टू इंडिया फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे विल हैव टू पे 89% कस्टम ड्यूटी। 89% कस्टम ड्यूटी का मतलब होता है कि अगर ₹1.30 पे ₹1 शो कर रहे हैं आप, cost of commodity you are showing that your 1 kg of iron steel is going to cost ₹1। अब उस पे 89% 89 पैसा उस पे टैक्स लगेगा। तो नाउ अब उसका टैक्स कितना हो गया, कॉस्ट ऑफ द ₹1 89 पैसा पर केजी हो गया। एंड टाटा आयरन स्टील आर रेडी टू सप्लाई आयरन स्टील फॉर ₹1.30। ठीक है, अब टाटा compete कर रहा है कि नहीं? तो Tatas are ready to, or Tatas are in a position to sell their commodities, manufacturers in the market of India, not because they are having better product or not because they are having lower cost. They are selling their commodity because of the Steel Protection Act. और ये याद रख लेना है कि उसके बाद बना है 1923-24 में ही बना था ये जो कलकत्ता में जो है कौन ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो बना था उसमें 26,500 टन लगा था आयरन स्टील, and out of 26.5 tons of iron steel that was used in the Howrah bridge, 23.5 tons of iron steel was of the Tatas. ये पहली दफा था, और जितना भी every industrial glut of the Tatas in between 1912 and 1923 was sold to the government of India. मैंने जो भी बनाया था ना 12-13 साल के अंदर में, ग्लट जो था, इंडस्ट्रियल ग्लट जो बैठा हुआ था, वो सारा का सारा बेच दिया टाटा ने। तो टाटा टिस्को टुक ऑफ और नॉट, वो शुरुआत किया ना, फ्लाई किया करना शुरू कर दिया। तो टिस्को दैट इज गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 10 लाख फैमिलीज इन इंडिया, इट गिव और इट गॉट अ स्टिमुलस because of the steel protection act, and steel protection act was definitely one of the better things that was done by the Swaraj party in the central legislature of India. एक दूसरा बात होता है इंडियन करेंसी बिल आया। इस इंडियन करेंसी बिल का मतलब होता है कि अ वैल्यूएशन ऑफ इंडियन करेंसी इन रेस्पेक्ट टू पाउंड वाज मेड। अ वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जब पाउंड का वैल्यू जो है वो ₹2 के बराबर एक पाउंड है, तो नेचुरली योर एक्सपोर्ट्स आर चीपर एंड योर इंपोर्ट्स आर कॉस्टलियर। अब यहाँ पे उसको घटा के कर दिया है। अ वैल्यूएशन का मतलब होता है कि 1 पाउंड इज गोइंग टू कॉस्ट ₹1.39 इज गोइंग टू परचेज 1 पाउंड। 1 पाउंड का वैल्यू ₹2 नहीं होगा, अब ₹2 नहीं होगा, अब ₹1.39 होगा। तो ₹1.39 हो गया, तो इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट हो गया कॉस्टलियर और इंपोर्ट हो गया चीपर हो गया। तो इट वाज डेफिनेटली बेनिफिशियल फॉर इंडिया। और तीसरा है कि 1923 से लेकर 1926 के बीच में नॉट इवन अ सिंगल लैंड रेवेन्यू एनहांसमेंट वाज बीन मेड। अंग्रेजों को कोई भी लैंड रेवेन्यू में एनहांसमेंट करने के लिए सरकार स्वराज पार्टी ने नेवर गिव परमिशन और नेवर गिव अ फ्री हैंड to bring any enhancement in the land revenue in between 1923 and 1926, 3 साल में। तो ये 3 फायदा हुआ। पर in 1925 CR दास डाइड, चित्तरंजन दास मर गए, and Motilal Nehru, because CR Das died or because Motilal Nehru was understanding that out of the CR Das, if he is going to be absent, तो स्वराज पार्टी इज इन फैक्ट द पार्टी ऑफ CR दास। तो नेचुरली CR दास का पॉपुलरिटी खत्म होगा, तो मोतीलाल नेहरू रिटर्न बैक टू द कांग्रेस। मोतीलाल नेहरू आल्सो लेफ्ट, द स्वराज पार्टी को छोड़ दिया, एंड बिकॉज दिस 2 टॉल फिगर्स ऑफ द स्वराज पार्टी दे हैव ऑलरेडी got eliminated from the Swaraj party, and therefore in the election of 1926 the Swaraj party lost the election everywhere except for Madras। मद्रास की जगह पे सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गया। ठीक है, माने ये कहने का मतलब होता है कि इंडिविजुअल कल्ट उस समय भी था। इफ यू आर गोइंग टू ओमिट और इफ यू आर गोइंग टू एलिमिनेट, कौन है, लालू प्रसाद यादव एंड तेजस्वी यादव फ्रॉम राजद, तो Rajad, other members of the other politicians of the Rajad, they don't have the capability to win a single seat. If you are going to eliminate Modi ji and Amit Shah from BJP, तो BJP में तीसरा कोई लीडर बताओ जो अपने बलबूते पे कोई सरकार बनाने की काबिलियत रखता हो। If you are going to eliminate Sonia Gandhi and Rahul Gandhi from the Congress, you can never imagine of the third leader of the Congress who can form the government at the center all by himself. सिंपल है। तो इंडिविजुअल कल्ट अभी भी है, अभी भी माने राजद में जब जितना भी वोट मिलता है,
अच्छा 8 की अभी भी ये स्थिति है कि इंडिविजुअल कल्ट है। अरे कहने को तो इंडिया में डेमोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी इज टोटली डिपेंड अपॉन मैनिफेस्टो। Almost all the political parties just prior to election they simply declare their manifesto, and almost all the voters they cast their vote on the merit of the manifesto that has been declared by the political party. पर 95% या more than 90% of the voters they are actually illiterate. They don't have the capability to read the manifesto. अगर पढ़ भी लिए तो they don't have the power to analyze the manifesto. जो हम कह रहे हैं उसको समझने का भी काबिलियत नहीं रखते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिलता है। इनफैक्ट मोदी जी के नाम पे छोड़ो, ये महात्मा गांधी के नाम पे, बी आर अम्बेडकर के नाम पे कल ही देख रहे थे, बी आर अम्बेडकर हिमसेल्फ फॉर 2 इलेक्शंस एंड इन बोथ द इलेक्शन ही लॉस्ट द इलेक्शन। बी आर अम्बेडकर जो है वो 2 बार लड़े थे नॉर्थ बॉम्बे सीट से और दोनों बार हार गए। ठीक है, पर उनके नाम पर अभी इलेक्शन जीते जाते हैं, ढेर सारे इलेक्शन जीते जाते हैं। का मतलब होता है इंडिविजुअल कल्ट, इसी को बोलते हैं। इट इज नॉट डेमोक्रेसी एक्चुअली, इट इज इंडिविजुअल कल्ट। ठीक है, तो सी आर दास ये दोनों जैसे ही मरे या ये एलिमिनेट हुए स्वराज पार्टी से, स्वराज पार्टी लॉस्ट द टोटल मैंडेट एंड इन द इलेक्शन ऑफ 1926 दे लॉस्ट द इलेक्शन एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर मद्रास। ठीक है, इन 1926 जनरल इलेक्शन स्वराज पार्टी लॉस्ट एवरीवेयर एक्सेप्ट फॉर मद्रास। अब देखो, if you are going to place yourself in the politics of India in 1926, so you are going to find that there was a total situation of political lull and political silence created in India. Political स्थिरता थी, stagnancy था, because non cooperation movement करके देख लिए मैंने। one faction of the Congress has already tried the formula of non cooperating with the British to achieve independence, but in vain, नहीं मिला। The same Congress they have applied the formula of cooperating with the British to gain independence, but नहीं मिला, है ना। अब क्या करें, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके देख लिए, कुछ नहीं मिला। कोऑपरेशन मूवमेंट करके देख लिए, कुछ नहीं मिला। तो नाउ व्हाट द थर्ड, व्हाट इज द रेस्ट, व्हाट इज इनफैक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन? नेक्स्ट ऑप्शन कुछ नहीं था इंडिया के पास। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तुम लोग तो सुन रही है, तुम लोग समझ रहा है। तो अब जो है वो 1926 में ये कहा जाता है कि 1926 में देयर वाज अ टोटल पॉलिटिकल लल और पॉलिटिकल साइलेंस क्रिएटेड इन इंडिया। द पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया दे वर नॉट हैविंग एनी थर्ड ऑप्शन और नो वन वाज रेडी टू टॉक पॉलिटिक्स। इवन 25-26 में इलेक्शन ऐसा, माने राजनीतिक माहौल ऐसा हो गया था। 12 बजे से है तुम लोग का, ठीक है, बगल में बैठ जाओ। ठीक है, तो अब क्या किया जाए भाई? बट इन 19 फॉर्चुनेटली, अब माने नो वन वाज रेडी टू टॉक पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि इफ सम पॉलिटिशियन इज गोइंग टू कम टू योर ड्रॉप हिमसेल्फ इन एट योर हाउस, और आप हैं कोई बहुत बड़े मोतीलाल नेहरू हैं और कह रहे हैं कि मोती चा अब क्या किया जाए, या मोती भाई अब क्या किया जाए, तो मोतीलाल नेहरू बोलेंगे कि भाई अब हमारे बस की बात नहीं है, मेरे दिमाग के ऊपर का बात है, आज़ादी कैसे मिलेगा हमको नहीं पता है, एंड आई डोंट हैव द टाइम टू टॉक पॉलिटिक्स। बेकार का चीज़ है। कोऑपरेशन करके देख लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके देख लिए, कुछ नहीं मिलता है यार, कुछ नहीं होगा, जो होना होगा होगा। माने एवरीवन वाज 100% डिपेंड अपॉन डेस्टिनी, कि अगर आज़ादी मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। पर फॉर्चुनेटली द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1926-27 दे डिक्लेयर्ड द साइमन कमीशन। This political silence was broken by the declaration of the British of the Simon Commission. Simon Commission में क्या था? 1926 में आना था। Simon Commission का पर्पस, if you are going to look into the purpose of the Simon Commission, तो लोग आया था कि यहाँ पे देखो 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 में, फिर आया 1919 एंड 1929। देखिए, in the government of India in 1909 they have already given the last clause of the 1909 government of India in 1909 clearly made a statement that at a gap periodical intervals of every 10 years they are going to consider a set of concession that will be more matured and more advanced compared to its preceding one। का मतलब 1909 में दिए, फिर 1919 में दिया वो लोगों ने।
मॉर्लिमेंटो रिफॉर्म, मोंटागू चेसम रिफॉर्म, और फिर आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स इन 1929 अ सेट ऑफ कंस्टिट्यूशन वाज ड्यू टू इंडिया, आना था, इंडिया को मिलना था। तो पर यहाँ पे अंग्रेजों को ये लग रहा था, देवर स्टक विद ऑ, कि अब क्या किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 दिए, तो इंडियन पीपल दे वर नॉट हैप्पी, दे कंसीडर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द पीपल ऑफ इंडिया दे वर नॉट हैप्पी। तो इसका मतलब होता है कि वी आर डेफिनेटली कमिटिंग सम फॉल्ट समवेयर, because of which the people of India they are not getting satiated or they are not getting satisfied. तो कुछ ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929 जब हम देंगे गवर्नमेंट इंडियन को, तो वी शुड डू समथिंग कि वॉट एवर रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वी शुड फुलफिल इट एंड देन वी आर गोइंग टू कंसीडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1929। उसी को देखने आया था यहाँ पे 1927 में द साइमन कमीशन वाज डिक्लेयर्ड। Simon Commission has come to India to look into the viability and the wrongs or inherent faults within the Government of India Act 1919, so that because Government of India Act 1919 was working in India for more than 8 years, and therefore 1927 में Simon Commission आया था कि just to look into the workability of the Government of India Act 1919 and just to find any sort of fault lying at any point of time, at any point, so that they can give recommendation to the British Parliament, and British Parliament working on the recommendation of the Simon Commission, they are going to concede the set of constitution in 1929 that will be acceptable to the people of India. But the only fault, तो जहां तक उसका मिशन का सवाल था, या as far as the agenda of the Simon Commission was concerned, there was nothing wrong to it, and the people of India they were having no obligation to it. But the fault was that there were 7 members in the Simon Commission, and all 7 members of the Simon Commission were to be of British. अंग्रेज थे एक, और ये भी कहा जाता है कि 1 or 2 members of the Simon Commission they were visiting India for the first time. तो the people of India they started objecting to it. कांग्रेस जो है वो, कांग्रेस को अब मुद्दा मिल गया कुछ करने का, राजनीति करने का। कांग्रेस ने कहा कि भाई बिकॉज वी आर एक्चुअली द पीपल ऑफ इंडिया हु आर फेसिंग और हु आर इन फैक्ट वर्किंग और हु आर इन फैक्ट facing the government of India Act 1919 since last 8 years. तो we Indians are in a better position to understand कि what is where is the fault, इसमें फॉल्ट कहाँ है। हम इसके तहत हम इसको बर्दाश्त कर रहे हैं 9-8 साल से, तो हम ना समझेंगे कि इसमें फॉल्ट कहाँ है। तुम भेजो उस अंग्रेज को, और ये सारे के सारे अंग्रेज दे आर इन फैक्ट फर्स्ट टाइमर्स टू इंडिया, व्हाट द हेल दे नो अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव कम टू इंडिया, तो इंडियंस लोगों ने और द कांग्रेस स्पेशली दे डिक्लेयर्ड द सामन कमीशन टू बी अ पॉलिटिकल टूर। ये राजनीतिक टूर है, और अंग्रेज जो इंडिया में 8 साल के बाद घूमने आए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑब्जेक्टेड दैट देयर शुड बी एटलीस्ट 1 इंडियन मेंबर इन द सामन कमीशन। तो सामन कमीशन ने बोला, जैसे ही इंडियंस लोगों ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया कि ऑल 7 मेंबर्स ऑफ द सामन कमीशन दे आर ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन, देयर शुड हैव बीन एटलीस्ट 1 or 2 मेंबर ऑफ द इंडियन ओरिजिन इन द सामन कमीशन। द सामन कमीशन गिव अ 3-word चैलेंज। अंग्रेजों ने कह दिया यहाँ पे कि वी हैव कम टू इंडिया नॉट टू प्ले एनी गेम, वी हैव कम टू इंडिया टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड वी पर्सनली फील, स्टेटमेंट सुनो बढ़िया से, वी पर्सनली फील दैट देयर इज नॉट इवन अ सिंगल इंडियन हु इज मेंटली मैच्योर्ड टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल बी एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। हिंदुस्तानी हम लोग ये समझते हैं यहाँ पे कोई कुछ गेम खेलने नहीं आए हैं, यहाँ पे आए हैं एक संविधान का निर्माण करने के लिए। और हम लोग को ये लगता है कि हिंदुस्तान की कोई भी ऐसी जनता इतने मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है कि वो एक ऐसे संविधान का निर्माण कर दे जो सारे के सारे हिंदुस्तानियों को सर्वमान्य हो, बिकॉज दे वर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग ना, कि सिख कम्युनिटी इज डिफरेंट, शेड्यूल कास्ट इज डिफरेंट, द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज डिफरेंट, ये लिबरल फेडरेशन अलग है, हिंदू महासभा अलग है, इंडियन मुस्लिम लीग अलग है। तो देयर वर मोर डाइवर्जिंग पॉलिटिकल लाइंस, political opinions in India, and therefore the British government they were having every first-hand information regarding the political divergence of India. तो naturally they threw a challenge to the Indian people. तब जो है वो as a challenge or as a reciprocation to the challenge thrown to the Indian people by the British government or by the Simon Commission, an all-party conference was held in Bombay under the leadership of मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के लीडरशिप में एक all-party conference हुआ बॉम्बे में, and the single agenda for which this all party conference was held in Bombay was to frame a constitution.
so that they can give answer to their challenge. ठीक है, और ये जो रिपोर्ट बना संविधान बनाने के उद्देश्य से बना था, और संविधान जो बना उसको कॉमनली इट वाज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज कॉमनली नोन एज द नेहरू रिपोर्ट. ठीक है, आया बात समझ में? आया. स्टार्टिंग में तो 11 बजे ना था, 10:60 में होता है. 10:70 पे तो 11:10 हो जाता है. मैंने इट्स वेरी फॉर्चुनेट दैट यू आर बोर्न इन औरंगाबाद. किसी बढ़िया स्कूल में अगर रहते हो ना तुम लोग, तो तुम लोग को स्कूल से कई बार निकाला गया होता, बिकॉज यू आर नॉट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग. सिंपल आदमी नहीं हो तुम लोग को. यू आर स्टिल इन द बेटर हाफ और द राइट साइड ऑफ द सब ह्यूमन स्टेज. सब ह्यूमन स्टेज के बेहतर साइड में हो, माने टुवर्ड्स मानव हो. पर मानव हुआ कंप्लीटली ऐसा नहीं है. यू स्टिल शो symptoms that sometimes you start behaving as a human being, sometimes you completely behave as an animal. उसके बीच में एक बीच का रास्ता निकालना मास्टर के लिए, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है यार. पर है तो है. ठीक है, अब देखो 1927 में जब साइमन कमीशन आया, तो साइमन कमीशन का ऑब्जेक्शन किया गया. यहाँ पे ऑब्जेक्ट किया गया, गो बैक साइमन. हड़ताल हुआ, एवरी पार्ट ऑफ इंडिया में हड़ताल हुआ. साइमन कमीशन गो बैक वगैरह वगैरह, बॉयकॉट ऑफ साइमन कमीशन ये हुआ. एंड इन 1926-27 व्हेन द एनुअल सेशन ऑफ द कांग्रेस वाज हेल्ड, व्हेन द एनुअल सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड, तो जवाहरलाल नेहरू and Jawaharlal Nehru, there was once again the Indian National Congress was vivisected. बटा हुआ था. एक था वन ग्रुप ऑफ द कांग्रेस हु आर बीइंग हेडेड बाय यूथ लीडर्स, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वगैरह जो थे, और दूसरे थे महात्मा गांधी वगैरह जो वेटरन लीडर्स थे. दे वर ऑफ द ओपिनियन, महात्मा गांधी वाज ऑफ द ओपिनियन, और द फैक्शन ऑफ द कांग्रेस हेडेड बाय महात्मा गांधी वाज ऑफ द ओपिनियन दैट द कांग्रेस शुड डिमांड डोमिनेंट स्टेटस. द यूथ लीडर्स ऑफ द कांग्रेस दे वर ऑफ द ओपिनियन दैट नहीं, डोमिनेंट स्टेटस मांगते मांगते थक गए हैं. It is high time for the Congress to demand complete independence, nothing less than complete independence. अब ये लोग कह रहे थे कि बी सेंसिबल यार, जहाँ डोमिनेंट स्टेटस नहीं है वहां पे कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगना इट्स फुलिशनेस. अब यूथ लीडर्स कह रहे थे कि भाई डोमिनेंट स्टेटस भी नहीं मिल रहा है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांग के देखते हैं, वो भी नहीं मिलेगा. नहीं मिलेगा भाई, डोमिनेंट स्टेटस हम मांग रहे हैं. अगर वो लोग खूब खोजेगा तो दे आर गोइंग टू गिव डोमिनेंट स्टेटस. Once again we'll have to fight for complete independence ना. तो why not to demand complete independence and nothing less than that. तो ये बात यहाँ पे 1927 तो कैसे किसी तरह खत्म हो गया. 1928 जब आया, 1928 में, बिकॉज 1927 में मोतीलाल नेहरू वाज द कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, एंड जब इसका मतलब ये होता है कांग्रेस वाज स्टिल अंडर द डोमिनेंस ऑफ द वेटरन लीडर्स. तो वेटरन लीडर्स का बात चल गया. पर 1928 में ये बात हुआ कि कांग्रेस वेटरन लीडर्स दे वर स्टिल ऑफ द ओपिनियन दैट कांग्रेस शुड डिमांड डोमिनेंट स्टेटस. अभी लोगों ने कहना, यूथ लीडर्स कहना शुरू कर दिया कि 1927 में भी बोले थे आप, 1928 में भी मांग रहे हैं, वही डोमिनेंट स्टेटस से चाहिए. अब हम लोग नहीं मानेंगे कि द कांग्रेस शुड स्टार्ट डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस. टूट जाएगा, इट इज गोइंग टू ब्रेक डाउन. पर यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकाला गया कि 1928 द कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट, लिखो जल्दी से इसको लिख लो. इन 1928 द कांग्रेस मेड अ डिक्लेरेशन, कांग्रेस मेड अ डिक्लेरेशन that the Congress demands dominion status. Congress demands dominion status, but with a condition. But with a condition. If it is not granted,
Latest by midnight of 31st December 1929. The Congress will start demanding dominion status, ये complete independence. ठीक है कि 1928 दिसंबर, लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में होता था एनुअल सेशन कांग्रेस का जनरली, और यहां पे कह रहा है कि द कांग्रेस इज डिमांडिंग डोमिनेंट स्टेटस, बट विद द कंडीशन that if this dominant status is not conceded to India latest by midnight of 31st December 1929, the Congress should get the message that the Congress is demanding complete independence and Congress is going to go up to any extent to achieve it. अगर 31 दिसंबर, क्योंकि उसके 31 दिसंबर के मिडनाइट के पहले अधिवेशन खत्म हो जाएगा 1919 वाला, 1929 वाला, तो कांग्रेस ये ना समझो कि 1929 में कुछ नहीं मांगा है। हम लोग 1929 में क्या कांग्रेस मांगने वाला है हमने एक साल पहले ही तुमको बता दिया कि 1928 में 1929 के 31 दिसंबर 1929 के पहले अगर आज डोमिनेंट स्टेटस नहीं दिया कांग्रेस ने, अंग्रेजों ने, तो ये कांग्रेस मान के चले कि कांग्रेस 1929 में मांग रहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगने के लिए एंड जस्ट टू अचीव द कंप्लीट इंडिपेंडेंस द कांग्रेस इज गोइंग टू गो अप टू एन एक्सटेंट टू अचीव इट। इसको अचीव करने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकता है, एंड प्रोबेबली दिस टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड आवर प्रीसीडिंग वन। पूरा का पूरा मैसेज जो है वो इट वाज एक्चुअली अ फॉल्ट ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस, बट कांग्रेस जो डिमांड किया कि 1929 के अगर दिसंबर तक नहीं मिला, 31 दिसंबर तक, तो कांग्रेस ये सरकार मान ले कि कांग्रेस डिमांड कर रहा है कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और कांग्रेस हैज ऑलरेडी मेड अ प्लान टू लॉन्च अनदर मास मूवमेंट, एंड दिस मास मूवमेंट विल बी लॉन्च फ्रॉम वेयर वी एंडेड आवर प्रीसीडिंग वन। माने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में जब खत्म किए थे, तो नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिफियंस ऑफ लॉ, ये थर्ड स्टेज में ये करना था, and prior to entering into the third and the final stage of the non-cooperation movement, Chauri Chaura incident happened, and therefore it was withdrawn. So before the Congress could have entered into the third and the final phase of non-payment of revenue and defiance of law, the non-cooperation movement was withdrawn. तो this time we are going to civil disobedience movement जब launch करेंगे, तो we are going to start from where we ended our preceding one. माने यहाँ शुरुआत ही होगा नॉन पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिफियंस ऑफ लॉ से। ठीक है, माने वे बैक इन 1929 दिसंबर यू हैव ऑलरेडी इंटिमिडेटेड योर स्ट्रॉन्गर एनिमी व्हाट आर इन फैक्ट योर फ्यूचर प्लान्स। 2 साल पहले ही तुमने बता दिया कि 2 साल बाद हम तुम्हारे अगेंस्ट में क्या करने वाले हैं, एंड आवर प्लान्स आर डेंजरस बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर लॉ एंड वी आर गोइंग टू स्टॉप पेइंग एनी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 5-7 मिनट का फ्रीडम ले लो तुम लोग।